Okay. Good morning, students. So let me start with the revision of this chapter once again. Okay. Am I audible? Tasmia? Yes, ma'am. Okay, good morning. Good morning. Hmm. So we'll start with the revision of the stress. हम देख लेते हैं एक बार. ठीक है? So already we have just done the stress chapter. एक बार हम देख लेते हैं what we are going to cover again in this one. So that is the being well adjusted a dynamic balance. जिसमें हम कुछ स्ट्रेस के definitions देखेंगे. Then we will see here the types of stress, then the stressor and their types. That is the stress, internal stresses क्या होता है और external क्या होता है. Yeah. Then next, coping with stress strategies. How we are going to coping with the stress. उसकी क्या क्या strategies है. That is the problem focused coping. Second है emotion focused coping. Next है फ्रूड की theory है, that is on the psychoanalysis, and very important, that is the defense mechanism. Fine. So here what we are going to learn and what is the objectives we have in this from this chapter. So we are going to develop the understanding of stress, then know the different types of stress, alag alag, then the sources and effect of stress, how we are going to identify the source of stress from day to day life, and we have to understand the different coping strategies. This is the learning objective we are going to see. Now, come to this point. So, being well adjusted, a dynamic balance, as we haven't seen the chapter about the mental health and normal behavior. वहाँ पे हमने क्या देखा था कि मेंटल हेल्थ और नॉर्मल बिहेवियर होता कैसा है. If we are talking about only the body health, so that is not going to work out anything. We have to keep our mental health also very well. Okay? We are not well adjusted in all the situations, and we may experience some level of discomfort in certain situation. Definitely, हम हर एक situation में अच्छे नहीं होते. If we think about, we are good in this, we are good in that. Hmm? But I am comfortable with everything. हम नहीं हो सकते. Hmm? कभी कभी आपको कुछ फ्रेंड्स अच्छे लगते हैं जिसके साथ आप कंफर्ट रहते हो, बट देर आर सम फ्रेंड्स विच यू आर नॉट कंफर्टेबल इवन टू टॉक विद देम. कुछ भी चीजें, दिस इज ओनली एग्जाम्पल ऑफ फ्रेंड, बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर दी अदर थिंग्स ऑल्सो, वी हैविंग आर कैटेगरीज टू having our comfort and discomfort. Okay. So the degree of the adjustment here the change according to the situation and time. Now, with the example, we can see here कि what are the commonly experienced some discomfort आप देखते हैं. In activity, sometimes Mitali is so worried about her performance in the examination that she turned blank during the exam. We say that Mitali is. Hmm? Then, when Faisal was going through a bad phase in his business and used to shout and scream at everyone around him, his family said that Faisal was. जो दिया है वो फिलअप हमें करना है. Just we are reading the question. Hmm? Robert has an audition on Monday, but at the time of audition, he felt so underconfident about performing well that he cancelled the audition. The organizer said he was probably. ठीक है. तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं
जो हमको डिस्कम्फर्ट लगती है, ठीक है। डिस्कम्फर्ट मीन्स वी कैन से लाइक देर आर some reason there are some reason which we feel uncomfortable or might be और भी बहुत सारे reasons है, not only the comfort and uncomfortable. Now यहाँ पे हम पहला examples we will see here like दिखेंगे, एक मिनट, that sometimes मिताली worried हो जाती है अपने परफॉर्मेंस को लेके एग्जाम में, एंड एग्जाम्स के टाइम पे क्या हो जाती है वो, she used to get blank, वो लिख नहीं पाती पेपर यहाँ पे। तो वो भी एक डिस्कम्फर्ट होती है जहाँ पे वो फॉरगेट हो जाती है अपनी चीजों को लेके। फैजल जो एक बैड फेस बिजनेस से जा रहा है, और वो वहां पे स्क्रीम करता है, चिल्लाता है अपने आजू बाजू लोगों के लिए। तो दिस इज अ फ्रस्ट्रेशन फेज वी कैन से, और दिस स्ट्रेस। रॉबर्ट जहाँ पे ऑडिशन देता है मंडे को, लेकिन उसको अंडर कॉन्फिडेंस फील होता है, उसकी परफॉर्मेंस जो होती है वो वेल ठीक कैंसिल, वो वहां पे ऑडिशन अपना कैंसिल कर देता है। सो दैट इज द अंडर कॉन्फिडेंस वी कैन से, ओके। सो एज यू मे हैवंट रियलाइज्ड वी यूज द टर्म टेंस्ड, worried, under pressure, anxious to indicate the discomfort one experiences in seemingly demanding situation. However, this different word mean different thing in psychological term. In psychological term, the discomfort that one experiences is seemingly demanding situation is called stress. Now we come to the main point, that is stress. Stress क्या होता है? Actual में देखा जाए तो stress is the low level in the sense of उससे ऊपर होता है, that is known as a depression. हम्म लोग, हम कुछ भी रहते हैं तो बोलते हैं अरे यार स्ट्रेस में है, बहुत लोग, मोस्टली द पीपल वर्ड जो यूज करते हैं दैट इज दी डिप्रेशन, कि अरे डिप्रेशन में गया ये इंसान, ये हो गया वो हो गया करके, ठीक है। बट एक्चुअल द डिप्रेशन इज द हाईएस्ट वर्ड। पहले स्टार्ट होती है वो छोटी छोटी चीजों से, स्टार्ट फ्रॉम द माइनर थिंग दैट इज द स्ट्रेस वी आर टॉकिंग अबाउट। बट व्हाट आर द थिंग्स इंक्लूड इन स्ट्रेस, दैट इज द टेंशन होता है अपना, वी आर गेटिंग मोर वरीड अबाउट, might be it can be for the short term, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता। अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए हो गया दिस ऑल थिंग, देन माइट बी इट कैन कम इनटू द डिप्रेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट इन द अंडर प्रेशर, हम अंडर प्रेशर होते हैं, एंशियस होते हैं यहाँ पे। ये सारी चीजें हमारे डिस्कम्फर्ट दिखाती है। ये सारी जो चीजें हमारे अंदर ऑलरेडी रहती है, दैट इज फ्रॉम द मेंटल प्रोसेस में हमारे, नॉट फ्रॉम द बॉडी। ये जो हम सोच रहे हैं, हम जो है करंटली एक्टिविटीज में, वो अफेक्ट कर रहा है, उस चीज को लेके पर्टिकुलर, इस चीज को हम एक स्ट्रेस बोलते हैं, हम्म। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जहाँ पे हम उस डिमांडिंग सिचुएशन को हम फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वी आर अनएबल टू फुलफिल दैट डिमांड। ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है जहाँ पे डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, एंड दैट इज नोन एज द स्ट्रेस। So since as the students of 11th standard you are facing demanding situation frequently, understanding the phenomenon is important not only as in students of psychology but also as individual for your own mental health ना। यहाँ पे हम सिर्फ सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, या तो नॉट इन द पर्टिकुलर थिंग, बट वी आर टॉकिंग अबाउट each and every individual who are facing these problems in day to day life, okay। Now you'll see about the stress that is in my definition it was given in my definition, इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस का अगर हम मीनिंग निकालेंगे, we get the different types of the things, different types of the experiences in stress, इसके लिए यहाँ पे my definition बोला गया है।
So we can see with this example, like Meena need fees for her higher education, but her father has less money than they required. He feels very stressed. Then Rishid is late for an appointment and he is stuck up in a traffic jam. He is stressed about reaching on time. Parminder is supposed to make a model for science examination, which is not working. Parminder feels stress. Now यहाँ तीनों चीज ये है कि the thing which is I told you पहले कि यहाँ पे demanding situation होती है. When there is the situation demand for anything and we are unable to fulfill, that time we are facing the stress. ठीक है. सो यहाँ पे ऑलरेडी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं मीना का, रशीद का और परमिंदर का. ठीक है. मीना को स्ट्रेस आ रहा है बिकॉज वो अपने हायर एजुकेशन के लिए फीस नहीं दे पा रही है. रशीद की प्रॉब्लम है कि वो ट्रैफिक में फंस गया है. ठीक है. एंड परमिंदर का है कि उसको साइंस प्रोजेक्ट बनाना है बट वो काम नहीं कर रहा है. And after when thinking so much, these people are getting too much of stress. Now यहाँ पे stress of जब माइंड बोला था तो हम देखेंगे कि क्या है एग्जैक्टली स्ट्रेस. ठीक है. लेट बी एक मिनट. आतिका शेख. आतिका. आतिका अनम्यूट करो अपने आप को. चंद्रेश. च- हाँ आरती. Yes, ma'am. चलो आरती अच्छा तुम मुझे बताओ. What is the simple meaning of stress? Simple meaning means I'm talking about the general. Ma'am, when we take some pressure in our mind Hmm. due to something, Hmm. मतलब जब हम अपने माइंड को सबसे ज्यादा प्रेशराइज करते हैं, मतलब Hmm. एक चीज को लेके बार बार एक ही चीज को सोचते रहते हैं, तो उसको Hmm. स्ट्रेस बोल सकते हैं. फाइन. अब तो स्ट्रेस और डेफिनेशन और टेंशन में क्या तीनों फर्क है. पहले स्ट्रेस और डिप्रेशन को हम देखते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिप्रेशन एंड स्ट्रेस. डिप्रेशन लॉन्ग टाइम होता है, हम्म. मतलब स्ट्रेस स्ट्रेस मतलब कम टाइम के लिए हो सकता है, और डिप्रेशन बहुत लॉन्ग टाइम तक. ओके. ठीक है. चलो. एन एग्जाम्पल. आफ्टर दिस यू हैव एन एग्जाम्पल नॉट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एनी अदर एग्जाम्पल. नो मैम. आरती वी हैव एन डेली बेसिस पे हमें बहुत एग्जाम्पल्स मिलते हैं. तो एक एग्जाम्पल दे दो. मैम टेस्ट मार्क्स का. ओह. ओके फाइन. वो दैट इजंट कॉमन फॉर एवरी स्टूडेंट राइट. चलो यस. ठीक. ओके फाइन. सो ये एक आरती ने जो बोला सही था. दैट इज इन. नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस. सो यहाँ पे द वर्ड स्ट्रेस is derived from the Latin word that is this string means to be drawn tight. Okay. So according to Richard Lazarus, that is in 1922 से लेके 2002, stress isn't feeling experienced when an individual feel that a demand exceed the personal and social resources an individual is able to mobilize. ऑलरेडी यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है कि जो लैटिन वर्ड में
ट्विस्टिंग इसका मतलब होता है कोई भी चीज टाइटली खींचना। ठीक है, कभी कभी चीजें भी हम नॉर्मल बोलते हैं ना कि ज्यादा स्ट्रेस मत कर किसी चीज को लेके। ठीक है, वो भी एक होता है। सो अकॉर्डिंग टू रिचार्ड, हम क्या देखेंगे, स्ट्रेस एक ऐसी फीलिंग है, एक ऐसी एक्सपीरियंस है जो एक इंडिविजुअल फील करता है कि दैट द डिमांड एक्सीड हो जा रही है पर्सनली एंड सोशल रिसोर्सेस। ठीक है, एंड वो एक से दूसरे इंडिविजुअल में मोबिलाइज होती रहती है। सो इन दिस एग्जाम्पल गिवन इन एक्टिविटीज, मीना के एजुकेशन में they need the much more money than is able to mobilize. Rashid need more time to reach the destination, but he has only 5 minutes, making Parminder model need a level of expertise beyond her capacity. Thus, in each case, the demand of the situation is much greater than the resources capabilities the person is able to mobilize. अब यहाँ पे स्ट्रेस नामक चीज जो आप देख रहे हो ना, ये कैसे होता है, डेफिनेटली हम फुलफिल नहीं कर पाते। और जब हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं, वी आर फेसिंग दिस इश्यूज। अब तक हमने तीनों में देखा, हम पर्सनल में भी देखेंगे। आई नीड दिस ड्रेस, आई नीड दिस मोबाइल, मुझे यहाँ जाना है। लेकिन एवरी टाइम द पेरेंट्स, नॉट एवरी टाइम, मोस्टली समटाइम्स द पेरेंट्स टेल अस राइट कि नहीं अभी नहीं लेना है, अभी पैसे नहीं है मेरे पास, लेट द सैलरी कम। ठीक है, जिद मत करो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है अभी, ये क्या करोगी लेके, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। जरूरत क्या है, अभी बड़े हो जाने दो, फिर दिलाऊंगी। ये सिचुएशंस में आप क्या करते हो, आप स्ट्रेस ले लेते हो, क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं मिल सकता। when the parents are telling you something, that time you feel like नहीं, क्यों नहीं, मैं यूज कर सकता हूँ, मैं यूज कर सकती हूँ, ऐसा होना चाहिए, मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे क्यों रोका जा रहा है। ये सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हो, आपके बस में नहीं है, बट यू हैव टू डू दैट एनी हाउ। यही चीजें आप जब चीजें खींचते हो, व्हेन यू दी ड्रॉन टाइट, उस टाइम को आपको एक स्ट्रेस फील होती है जो आपकी कैपेबिलिटी के अंदर नहीं है, बट स्टिल यू आर थिंकिंग द सेम चीजें। मीना के एजुकेशन के लिए था, पैसे नहीं हो पा रहे, इवन बहुत ट्राई कर रही है तो भी ना, उसकी कैपेबिलिटी के बाहर है। रशीद, जहाँ पे उसे जाना है बट नहीं कर सकता, वो तो उठा के तो जा नहीं सकता, ऑलरेडी ही इज इन क्यू, ही कैनॉट इवन कम द बैक, नॉट ही कैन कम अहेड। ठीक है, तो जहां पर है वो वहीं से कुछ सोल्यूशन निकाल सकता है। नेक्स्ट है परमिंदर का मॉडल। ठीक है, हमें चाहिए कोई एक्सपर्टाइज, बट एट द राइट टाइम सिचुएशन पे आपको सही एक्सपर्टाइज मिले, ये तो पॉसिबल नहीं है। हम्म, तो ये सब ना होते हुए ये काम नहीं हो रहा है, दैट्स द रीजन दिस आर कमिंग इन स्ट्रेस। ठीक है, so in medical terms the stress is described as a physical or psychological reaction that may lead to illness। डेफिनेटली अगर हम मेंटल की बात करें, हमारा फिजिकल पूरा डिपेंड है हमारे मेंटल मेंटल के ऊपर। कुछ भी चीजें होती है, सबसे पहले हमें शरीर के साथ में हमारे ब्रेन, हमारे माइंड को ज्यादा अच्छा रखना होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर हेल्दी टू योर दी mental goals, then only your physical is going to respond in that way only. Hmm? So according to Indian philosophy, our desire, involvement in material world are the cause of our stress, which lead to klesha. Now see here, there are some Indian words हैं जो include किए गए हैं, that is the first one, जो stress lead करता है, that is the klesha. There are 5 type of klesha, that is avidya, इसको हम ignorance बोलते हैं, अस्मिता, ego, raga, attraction, devsha, repulsion,
and abhinivesha, that is lust for life. Out of this, the avidya is the base of remaining four. We must seek realistic knowledge to be free from avidya. In Sanskrit, they are not only talking about mental health as arogya, यहाँ पे हम इसको आरोग्य बोलते हैं, absence of disease. Rog is the presence of disease and arogya is the absence of disease. Opposite words. And it explained as in swasthya means healthy. So being relaxed and maintaining one mental peace. तो बोलते ना क्या भाई बहुत ज्यादा स्वस्थ दिख रहे हो एकदम हेल्दी दिख रहे हो तो स्वस्थ मीन्स यदि हेल्दी द हेल्दी फ्रॉम माइंड एंड बॉडी बोथ ठीक है नंदिनी नंदिनी और श्रुति ओके तस्मिया 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 शेख दैट इज एमआर Yes, ma'am. आवाज आ रही है तस्मिया Yes, ma'am, Arya. ओके फाइन तस्मिया एक बार फटाफट इसको करो तब मैं इसको एक बार रिवाइज करती हूँ फटाफट यहाँ से अभी जो मैम, हमने हाँ क्या बोले आपने? बोल रही हुई डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस एक बार फटाफट एक बार रीड करो तो जस्ट रीड Okay, दिस वन हाँ okay. The word stress is derived from the Latin word stringy, means to be drawn tight. According to Richard Lazarus, in 1922 to 2002, stress is the feeling experienced when an individual that demands exceed the personal and social resources an individual is able to mobilize. In the example given in activity, Mina's education needs much more money than she is able to mobilize. Rashid needs more time to reach the destination, but he has only 5 minutes, making Parminder's model needs a level of expertise beyond her capability. Thus, in each case, the demand of the situation is much greater than the resources, capabilities the person is able to mobilize. In medical terms, stress is derived as a physical or psychological reaction that may lead to illness. According to Indian philosophy, our desires and involvement in material world are the cause of types of clashes: avidya, ignorance; asmita, ego; raga, attraction; dvesha, repulsion; and abhivinesha, lust for life. One of these, avidya, is base of remaining four. We must seek realistic knowledge to free from avidya. In Sanskrit, they are not only talking about mental health as arogya, absence of disease, but it is explained as swasthya, being relaxed and maintaining one's mental peace. okay Let's yeah नहीं that's it okay now we are going to see the three different scenario according to the this definition then you know about the clarification of proper
what is stress. Okay. So Jay is preparing for his upcoming semester, yeah, exam. He has moderate amount of stress. Moderate means we can say a medium amount of stress है उसके पास. So he studied hard and gives his best in his exam. At the same time, the student is under extreme stress. हमने सबसे पहले किसकी बात की? Moderate stress की बात की. Then we are talking about the extreme stress for the exam as she want to be a topper. So in spite of studying well, she panic and goes blank while writing the paper. Next, we can see the example of Azhar. Okay? Azhar do not have any stress for his exam. He bunk his classes while thinking that he can prepare himself at the last moment and pass the exam. But when he appear for the exam, he is not able to do well. Now यहाँ पे तीन अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे हम देखेंगे एक मॉडरेट स्ट्रेस, एक एक्सट्रीम स्ट्रेस, ठीक है, एंड द थर्ड वन डू नॉट हैव स्ट्रेस. So this is the three examples. We can clearly see the different situation. और होता है because every individual has their own, उनका एक लेवल होती है चीजें अलग. द चीजों को लेके उनकी खुद की अपनी परसेप्शन होती है. इवन यू एंड मी ऑल्सो आर द डिफरेंट चीजों को लेके, है ना, कि हमको किसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस देना है किसको नहीं. लेकिन कभी कभी उसी चीज को लेके, बिकॉज एग्जाम इज फॉर एवरीवन ना. एग्जाम तो सबके लिए है, बट इंडिविजुअल उसको कितना इम्पोर्टेंस देता है, इंडिविजुअल के लिए वो कितने मायने रखता है, व्हाट दी लेवल और व्हाट दी कैटेगरीज उसको वो अलॉट करता है. सो यहाँ पे जो हम पहला देखेंगे कि अबाउट दी जय. ठीक है, जय यहाँ पे मॉडरेट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, मतलब वो सोच रहा है कि भाई अगर अपने को इतनी इतनी आ जाए मार्क्स तो भी ठीक है, एटलीस्ट हम पास हो जाएंगे. आउट ऑफ 80, इफ आई गेट द 50-60 ऑल्सो तो भी इज ओके, क्योंकि हम निकल जाएंगे. बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम एग्जामिनेशन, सेम चीजें सब कुछ है, ओनली द पर्सन एंड सिचुएशन इज द सेम. ठीक है, बट थिंक हैज बीन डिफरेंट. यहाँ पे क्या कि स्ट्रुआ अंडर एक्सट्रीम स्ट्रेस, एग्जाम्स आ रही है, मैं क्या करूंगी, क्या होगा, ऐसा नहीं वैसा. और अगर वो इतने ज्यादा स्ट्रेस ले रही है, डेफिनेटली एग्जाम्स के टाइम पे शी इज गोइंग टू सफर एंड सम मेंटल इश्यूज आ जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल द फॉरगेटिंग. हम जब अपने दिमाग में थोड़ी बड़ी बहुत भी चीज होती है, अगर हम ज्यादा प्रेशर देते हैं तो वो हम भूल जाते हैं. तो सेम थिंग इज हैपनिंग विद द स्ट्रुआ. स्ट्रुआ यहाँ पे ऑलरेडी उसने काफी पढ़ी हुई है, लेकिन उसका जो एक लेवल है, स्ट्रेस लेवल, वो यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है. ज्यादा मीन्स इट वाज एक्सट्रीम लेवल. और यही सोचते सोचते जब वो एग्जामिनेशन हॉल में जाएगी, बैठेगी पेपर, शी इज गोइंग टू, आता हुआ भी उसको, शी इज गोइंग टू ब्लैंक. ये चीज हो रही है. अजहर, उनको कुछ भी लेना देना नहीं है. ठीक है, he don't want to take anything else of the tension. No stress for his exam. मिला तो मिला, नहीं मिला तो ठीक है, ये वाली कंडीशन है. सो स्पेशली ये थॉट हमारी पहले से आ जाती है. वी इन्वॉल्व टू आवर सेल्फ इन अदर एक्टिविटीज. सो वहाँ पे वो क्लासेस जो है वो बंक करना चालू कर देता है, और वो अपने आप को लास्ट मोमेंट के लिए रखता है. बस इतना ही मुझे पढ़ना है, देखते हैं ना, नहीं तो बस 35 इज ओके. 35 ना पास हो गया, पासिंग मार्क्स से निकल गए, बस उसके लिए उतना ही काफी है. बट ऐसे लोग, चलो 35, अगर उसमें से भी अगर आपके कुछ रॉन्ग हुए, राइट हुए, चले गए, तब आप क्या करोगे?
बट यहाँ पे अजहर को फेल होने का भी डर नहीं है। क्या? लेकिन यहाँ पे गजर का एक और लाइन दिया हुआ है कि बट व्हेन ही अपीयर फॉर द एग्जाम एज आई टोल्ड यू, वो आंसर वो भी लिख नहीं पा रहा है। उसे सोचा होगा कि आई गेट द 35 मार्क्स आफ्टर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन, बट माइट बी उसका 35 भी नहीं आया। एक मिनट। नाउ come to the next, that is everybody deal with stress is in own way। हम सब स्ट्रेस को अपने तरीके से डील करते हैं। यस, माइट बी एन स्मॉल चाइल्ड, फिर चाहे वो 25 ईयर्स का कोई इंसान हो, या वो 45, माइट बी 55, 75 और 90। व्हेन वी वर चाइल्ड, तब से लेके टिल द ओल्ड एज, कहीं ना कहीं हम सफर करते हैं विद स्ट्रेस से। ठीक है। एंड एज एन ह्यूमन बीइंग वी नो अबाउट कि हमें स्ट्रेस को डील कैसे करना होता है। हम्म? हमेशा ऑल स्ट्रेस वी कैन नॉट डील, बट देयर आर फ्यू स्ट्रेस जिसको हम डील करते हैं। छोटा सा बच्चा जैसे, उसको नाउ ही नोज अबाउट, उसे भूख लगी है। अभी उसे तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे क्या, बट यस पेट में कुछ हो रहा है उसे, एंड ही इज अंडरस्टैंडिंग दैट कि उसे ही इज हंगर। सो व्हेन एवर ही जस्ट सॉ हिज मदर, तो उसे वो रोना चालू कर देगा। अब उसे ये स्ट्रेस आ रही है भाई कि मम्मा तो वहां पे है, मैं देख रहा हूँ, मैं रो भी रहा हूँ, लेकिन मम्मा आ नहीं रही है और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। हम डील करते हैं ये चीजों पे, लेकिन कुछ देर में ही उनकी मम्मा आती है और उनको कुछ फीड करती है। ठीक है। सो ये अपने बचपन का हो गया। जब हम बड़े होते हैं, कॉलेज का स्ट्रेस अलग होता है। पेरेंट्स जिनका मूड 50-50 होता है अपने लिए। ठीक है। एवरीथिंग, हमारी डिमांड्स 200% होते हैं, ये वो ऐसा वैसा। बट कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, मोस्टली पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि दे अवॉइड द थिंग्स। वो सारी डिमांड्स आपकी पूरी नहीं करते। ये छोटी मोटी जो स्ट्रेस आती रहती है, लेकिन उसे भी हम डील करते, ओके फाइन जाने दे। हम तो कई बार ऐसे बोलते हैं, वी हैव एन आवर ओन एटीट्यूड समथिंग एंड वी टेल कि यस, मैं खुद कमाऊंगा तो खुद दूंगा, मैं खुद हो जाएगा तो मैं खुद करूंगा। तो ये स्ट्रेस, ये लाइन बोल के हम अपने आप को एक वेल मैच्योर का सिग्नल देते हैं, चलो फाइन। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर कर लेते हैं कि यस, माइट भी कुछ हो सकता है, तो नहीं दिला रहे हैं, नहीं हो रहा है, विल सी नेक्स्ट टाइम। नहीं, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, देन 45 पे फैमिलीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद बुढ़ापा। हर एक लेवल का अपना एक स्ट्रेस है, एंड वी डेफिनेटली डील विद दैट स्ट्रेस। ठीक है। तो stress works just like a key operated toy. If the key is worn too much, अगर वो की ज्यादा घुमा दिया जाए, so the arrangement would break। जो उसकी अंदर की मशीनरी है, वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो ऐसे स्ट्रेस होती है। कोई भी चीजों को हम ज्यादा स्ट्रेस बोलते हैं ना, अरे यार कितना हम सोच रहे हैं, समटाइम्स वी आर ओवर थिंक, और वही ओवर थिंक हमारी क्या हो जाती है, स्ट्रेस हो जाती है। किसी भी चीज को हमें ज्यादा खींचना नहीं है। और उसी में हमें ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर किसी भी खिलौने की चाबी हम बहुत ज्यादा दे रहे हैं, तो माइट बी इट कैन ब्रेक। तो लाइफ में कोई भी चीज है, लेट थोड़ा सा उसे एक सेकंड ऑप्शंस भी रखो उसके साथ। सो सिमिलरली, when stress exceed a limit or it very less, it will be destroyed the performance।
Only under moderate stress we can achieve the optimum performance. यहाँ पे हमने किसकी बात की है? Moderate stress. Moderate stress, and after that we will get the optimum performance. ठीक है? Moderate means ना तो high और ना ही एकदम low. The phenomenon can be explained with the help of the following diagram. अभी हम स्ट्रेस की डायग्राम देखते हैं. स्ट्रेस की लेवल क्या होती है? यहाँ पे लो एंड यहाँ पे हम देखेंगे हाई. मिडिल में आता है ऑप्टिमल परफॉर्मेंस. ना, optimal performance, that is in the bed. Low में we are getting the understimulated and alert होते हैं. High में we will see overwhelm, distress और dash functional हो जाती है. जहाँ पे हमारी जो एंजाइटी है वो ज्यादा वहाँ पे बढ़ जाती है. ठीक है? बाकी अपना दोनों का गोल वही है, ऑप्टिमल परफॉर्मेंस देना जरूरी है. आते तो उसी तरफ है दोनों. अलर्टनेस मिलती है, अंडर एस्टिमेट मिलती है, बट वी विल कम टू आर परफॉर्मेंस. जितना हो रहा है उतना ही सही सोच के. ठीक है? स्ट्रेस को लेवल पे लाना, स्ट्रेस को वहीं पर खत्म करना, सॉल्व आउट करके, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई थिंक से, राइट? एक मिनट. Now in activity 3 only it was given that something एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं. हमेशा याद रखना कि कभी भी एग्जाम्स में ये बॉक्स में दिए गए जो भी एग्जाम्पल्स, नॉट एग्जाम्पल्स, इट इज एन एक्टिविटी ओनली, वो हम एक एग्जाम्पल के लिए यूज कर सकते हैं. ठीक है? सो ट्राई टू रिमेम्बर द सिचुएशन इन योर लाइफ when the stress was moderate, the stress was too much, that is the extreme level. ठीक है? Try to remember what happened in both the situation. Which was a more productive situation? Did it follow the graph shown? This was indifferent. This lead a discussion of type of stress. ठीक. एक मिनट. Yes. Shivam. Shivam. शिवम अनम्यूट करो अपने आप को. शिवम. Students, can you listen me now? Students, आवाज आ रही मेरी? Still not getting any response from you. Chandresh, Archita, Yes, miss. Archita. Yes, Archita. Am I audible clearly? Yes, miss. Okay. अर्षिता, ये वाली लाइन फटाफट पढ़ लो तो एक बार. लेट अस थ्री डिफरेंट सिनेरियोस से लेके, then I'll Okay. go ahead. Let us see three different scenarios. Jay is preparing Let for us. his हाँ हाँ, start. One. Jay is preparing for his upcoming semester exam. He has moderate amount of stress, so he studies hard and gives his best in his exam. At the same time, Spruha is under extreme stress for the exam and she wants to be a topper. So, in spite of studying well, she panics and goes blank while writing the paper. Azhar does not have any stress for his exam. He bunks his classes while thinking that he can prepare himself at the last moment and pass the exam. But when he appears for the exam, he is not able to do well.
Everybody deals with stress in his own way, depending upon his genetic predisposition and environment conditions. Stress works just like a key operated toy. If the key is wound too much, sorry ma'am, if the key is wound too much, the arrangement would break. At the same time, if it is wound too less, the toy won't work as it should. Similarly, when stress exceeds a limit or if it is very less, it will deteriorate the performance. Only under moderate stress we can achieve the optimum performance. This phenomenon can be explained with the help of diagram. Yes, डायग्राम ऑल्सो एक बार देखो, एक्सप्लेन करो. लो, फिर उसके बाद अंडर स्टिमुलेटेड, देन अलर्ट, देन ऑप्टिकल परफॉर्मेंस, देन एक्सेसिव स्ट्रेस, उसके बाद ओवरवेल्म डिस्ट्रेस, डिफंक्शनल, एंड देन Yes, okay. Now we'll come to the type of stress. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज टाइप ऑफ स्ट्रेस. क्योंकि स्ट्रेस आपको लगता है कि सिर्फ हमने सोचा, ज्यादा सोचा और हमें स्ट्रेस हो गया. ठीक है, बट इसमें भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रेस है विच यू आर नॉट नोइंग अबाउट, राइट. लेकिन इसको ज्यादा टर्म में नहीं किया हुआ है, जहाँ पे सिर्फ एक या दो ही में इसको डिवाइड कर दिए हैं. आई जस्ट लेट यू नो. Amit has nothing to do during vacation, or Smita, who is an intelligent student, find the course unstimulating. They experience hypostress. Yes. There are few stress also dear, जहाँ पे आप एक फनी फील करोगे यहाँ पे. अमित के पास वेकेशन में कुछ भी करने के लिए नहीं है. सो यहाँ पे अमित के पास वेकेशन में कुछ भी नहीं करने के लिए है, बट स्मिता हु इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और उसने एक कोर्स फाइंड आउट कर लिया है एंड शी वाज डूइंग द कोर्स इन द वेकेशन टाइम. सो यहाँ पे उन्होंने एक हाइपर स्ट्रेस देखा है. हाइपर स्ट्रेस मीन्स यहाँ पे अमित जिसके पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, एंड स्मिता जो अपनी चॉइस से वेकेशन के टाइम पे शी इज, जो अपने इंटेलिजेंस से वो कोर्स उसने ज्वाइन कर लिया. Hypostress is caused when a person has nothing to do at all. It is insufficient amount of stress. When people have nothing to do, they get bored. And in this feeling, the persist for a longer time. It results in the hypostresses. बहुत इम्पोर्टेंट, हम कहते हैं ना इंसान को काम करते रहना चाहिए. हम्म? People should always involve in some or other activities. तो उससे क्या होगा, अपनी ब्रेन भी वर्क करती रहेगी. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको कुछ काम नहीं है, पढ़ने के लिए नहीं, कुछ नहीं, तो 24/7 दे आर जस्ट इन विद देयर फोन. तो ये फोन जो होता है, ये करता क्या है, क्या कुछ आप उसके साथ में एक्टिविटीज कर रहे हो, क्या आप उसके साथ कुछ दिमाग लगा रहे हो, नहीं. यू आर जस्ट एंजॉइंग दैट मोमेंट. बट चलो ठीक, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा दिया आपको कि आप कंटिन्यू देख रहे हो. अगर मैंने आपको 4-5 घंटे भी दे दिए तो भी आपके पास क्या है काम करने के लिए उसमें, नथिंग. ठीक है, यू हैव नथिंग, जस्ट यू आर सीइंग विद द मोबाइल फोन. सो यहाँ पे एक हाइपर स्ट्रेस, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस द स्ट्रेस इज कमिंग, बिकॉज क्योंकि कुछ काम नहीं है एंड ये हाइपर स्ट्रेस धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपके ऊपर चढ़ रहा है. सो insufficient work and जो आप कर नहीं रहे हो काम बाय बीइंग द फ्री,
This is the giving the hypostress. When people have nothing to do, they get बोर हो जाते हैं, खाली दिमाग शैतान का होता है. So usually people with hypostress are working on unchallenging job in which they become the demotivated, enthusiastic, and the restless. Hypostress may be due to work under load. कभी कभी ये भी चीजें होती है. सो यहाँ पे हाइपोस्ट्रेस के कुछ ओरिजिन दिए हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल अनचैलेंजिंग जॉब, मतलब कुछ है नहीं जॉब में. जस्ट यू हैव टू गो ओवर देयर, सिट एंड यू हैव टू कम. सो यहाँ पे आपको लग रहा है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ. तो जॉब है बट इट इज नॉट एन अनचैलेंजिंग. ठीक है. तो जब हमारे पास कुछ अनचैलेंजिंग चीजें होती है, लाइक हम वो जस्ट बैठे हैं, आ जा रहे हैं, तो ऐसी जगह पे हम क्या हो जाते हैं, डिमोटिवेटेड, राइट. देन एंथुसियास्टिक एंड रेस्टलेस हो जाते हैं, जहाँ पे हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है. एंड दैट टाइम वी आर टेकिंग द स्मॉल स्ट्रेस. ठीक है. एंड यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, हाइपोस्ट्रेस. सेम थिंग विच इज कमिंग फ्रॉम दी ड्यू टू अंडरलोड. बिल्कुल आपके पास कुछ नहीं है. Hypostress is different from the leisure. Leisure different and hypostress is different. So leisure is a quality time spent away from work or domestic duties or studies. After a heavy period of work, it has relaxing and the recreation quality, and we have freedom and choice for our leisure time. एक मिनट, एक second. हाँ, तो हम देख रहे थे कि जो हाइपोस्ट्रेस होता है वो लीजर से अलग होता है. लीजर का मतलब होता है स्पेशली जहाँ पे आप अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो. ठीक है. फ्रॉम दी वर्क और डोमेस्टिक ड्यूटीज और स्टडीज. आप पूरे साल भर मेहनत किए हो एग्जाम्स के लिए, बट आफ्टर द एग्जाम यू नीड टू रिलैक्स इन दैट टाइम. लेकिन जो पूरे साल यहाँ पे आराम कर रहा है उसको हम थोड़ी ना हाइपोस्ट्रेस का टैग दे सकते हैं. ठीक है. Yes. Okay. Now, Jason is stuck up in a traffic jam, has lost his hall ticket, and already late for the exam. He is going to experience the hyper stress. कोई भी एग्जाम में अगर हॉल टिकट भूल जाए, कुछ हो जाए, डेफिनेटली वो हाइपर स्ट्रेस आ जाती है अंदर. So it caused due to the hyper stress. A person may experience the panic attack and may engage in exaggerated reaction, that is the throwing temper tantrums. It lead to the frustration or
agitation. Now, जैक्सन का यहाँ पे इशू क्या था कि अपना हॉल टिकट उस कोई भी रहे, इवन द नॉर्मल पर्सन ऑल्सो, ही विल कम इन द स्ट्रेस। वो भी स्ट्रेस कौन सा था? हाइपर स्ट्रेस था, बिकॉज माइट भी एग्जाम कोई भी अगर नहीं देगा तो डेफिनेटली वो सिचुएशंस वी नो अबाउट दैट सिचुएशन। सो ये क्या कॉज कर रहा है? एक्सट्रीम प्रेशराइजिंग कंडीशन। यहाँ पे जैक्सन के बाद एक्सट्रीम लेवल का ये आ गया था, प्रेशर आ गया था एक। सो ड्यू टू द हाइपर स्ट्रेस, यहाँ पे पर्सन एक पैनिक अटैक फील कर सकता है। अपना जो टेम्पर है वो अप एंड डाउन हो सकता है उसका, ठीक है। द फ्रस्ट्रेशन एंड द एजिटेशन माइट बी कैन कम आउटसाइड विद द पीपल्स। So thus in the hypostress there is high stress which lead to the panic or exaggerated reaction आ जाता है वहाँ। Now we'll see the next other two. एक मिनट। हाँ, so here we'll see now the eustress. After much preparation, Angda is ready for her stage performance. She is experiencing the eustress. हमने क्या क्या देखा अभी? हमने हाइपो देखा, हाइपर देखा। Now we will come to the eustress. So according to Greek, prefix eu means good, and therefore it is good stress. Hmm. According to the Merriam-Webster, born in 1975, eustress is a positive form of stress having a beneficial effect on health, motivation, performance, and emotional well-being. It is said that when an individual is excited, then determined, inspired, and energized, then ready to go. So, when we experience the eustress, the body is temporarily intense and quick, flooded with hormones like the dopamine and oxytocin. So, both these hormones are associated with positive feeling. तो यहाँ पे हमने यू स्ट्रेस, यू का मतलब होता है गुड स्ट्रेस। मीन्स कोई चीजें हम, फॉर एग्जाम्पल हमें घर बनवाना है, सो वी आर ट्राइंग टू मेक आवर हाउस, लेकिन उसमें हम इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, अपने आइडियाज दे रहे हैं एंड एवरीथिंग। सो दिस इज गुड फाइनली बिकॉज यू आर गेटिंग योर हाउस, ठीक है। सो यहाँ पे मरियम वेबस्टर क्या बोलती है? दिस इज पॉजिटिव फॉर्म ऑफ स्ट्रेस, जो आपको उसके बेनिफिट इफेक्ट्स ही मिलेंगे ऑन हेल्थ, मोटिवेशन आप मिलेंगे, आपको परफॉर्मेंस पहले से ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। इमोशनल आप स्टेबल रहोगे एंड वेलबींग। व्हेन वी एक्सपीरियंस द यू स्ट्रेस, हमारा जो बॉडी होता है वो टेम्परली इंटेंस और क्विकली फ्लडेड हार्मोन्स के साथ ज़्यादा है। मतलब आप खुश रहते हो तो आप बहुत कुछ दे देते हो, कभी आपको लगता है ऐसा कि यस ये लो, ये खाओ, ये देखो, वगैरह वगैरह। तो ये डोपामाइन जो ऑलरेडी काफ़ी हैप्पीनेस को शो करता है, एंड ऑक्सीटोसिन ऑल्सो, बोथ दिस हार्मोन्स आर एक पॉजिटिव फीलिंग्स को लेके आती है बाहर, ठीक है। हम्म, हम्म।
Now here, Sanjay meet with an accident and has become the partially handicapped. Now he is depend on other for assistance. Sanjay will experience the distress. This is the next hyper, you, and distress. As he is facing this unwanted situation. Now, the distress is a negative type of stress होती है ये. Of course, क्योंकि already एक person जो है वो partially handicapped हो गया है. तो that is not the happiness और कुछ और है. This is the distress. सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि नाउ ही इज डिपेंडेंट ऑन अदर असिस्टेंट. वो दूसरे के ऊपर डिपेंड हो रहा है कि उसे कोई पकड़े लेके जाए. सो ही विल स्टार्ट राइटिंग द पेपर. नाउ ही वाज फेसिंग विद द अनवांटेड सिचुएशन. ठीक है. सो नाउ डिस्ट्रेस इज अ नेगेटिव टाइप ऑफ स्ट्रेस है. इंडिविजुअल एक्सपीरियंस इट व्हेन द नॉर्मल रूटीन जो चलती रहती है उसे हम क्या करते हैं, वी एडजस्ट इट एंड वी अल्टर्ड इट. नाउ वी आर एक्सपीरियंसिंग द डिस्ट्रेस ऑफ आवर बॉडी फ्लडेड विथ इमरजेंसी रिस्पॉन्स हार्मोन्स जैसे एंड्रेलाइन एंड दी कोलेस्ट्रॉल. ठीक है. एंड्रेलाइन इंक्रीज दी हार्ट रेट है वो बढ़ाता है. देन एवलेट दी ब्लड प्रेशर एंड बूस्ट एनर्जी सप्लाईज. ठीक है. सो दिस इज द जो उसकी एक्टिविटीज हैं. देन कैरेस्ट्रॉल द प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन देखता है जो इंक्रीज करता है द शुगर ग्लूकोज इन दी ब्लड स्ट्रीम. एनहांस हमारा ब्रेन जो है वो ग्लूकोज यूज करता है एंड इंक्रीज दी अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस दैट रिपेयर द टिश्यूज. हमारे टिश्यूज के लिए काफी अच्छा होता है. ठीक है. Now we have the 4 minutes. We'll take one for training. Yes, Archita. अर्चिता. यस मिस. अर्चिता यहाँ से बेटा रीड कर लो एक बार टाइप्स ऑफ स्ट्रेस को लेके. ओके मिस. Amit has nothing to do during vacation. एक मिनट पेज चेंज हो रहा है. एक मिनट जस्ट अ सेकेंड. कंटिन्यू करो अर्चिता. Amit has nothing to do during vacation, or Smita, who is an intelligent student, finds the course unstimulating. They experience hypostress. Hypostress is caused when a person has nothing to do at all. It is insufficient amount of stress. When people have nothing to do, they get bored, and if this feeling persists for longer time, it results in hypostress. Usually, people with hypostress are working on unchallenging jobs in which they become demotivated, unenthusiastic, and restless. Hypostress may be due to work underload. Hypostress is different from leisure. Leisure is a quality time spent away from work or domestic duties or studies. After a heavy period of work, it has relaxing and recreational qualities, and we have freedom and choice for our leisure time. First, Jason is stuck up in a traffic jam, has lost his hall ticket, and is already late for the exam. He is going to the experience hypostress. It causes due to extremely pressurizing conditions. Due to hypostress, a person may experience panic attack and may engage in exaggerated reactions like throwing temper tantrums. It leads to frustration or agitation. Thus, in hyperstress, there is high stress which leads to panic or exaggerated reactions. Second point. After much preparation, Anaga is ready for her stage performance. She is experiencing eustress. According to Greek prefix, eu means good and therefore it good stress. According to Merriam-Webster 1975, eustress is a positive form of stress having a beneficial effect on health, motivation, performance, and emotional well being. It is a state when an individual is excited, determined, inspired, energized, and ready to go.
When we experience eustress, the body is temporarily, intensely, and quickly flooded with hormones like dopamine and oxytocin. Both these hormones are associated with positive feelings. Third, Sujay meets with an ancient and has become partially handicapped, accident and has been partially handicapped. Now he is dependent on others for assistance. Sujay will experience distress as he is facing this unwanted situation. This stress is negative type of stress. Individual experience it when the normal routine is constantly adjusted and alerted. While experiencing distress, our body is flooded with emergency response hormones such as adrenaline and cortisol. Adrenaline increases heart rate, elevates blood pressure, and boosts energies. Plus cortisol, the primary stress hormone, increase sugar glucose in the bloodstream, enhance brain use of glucose, and increase the availability of substance that repair tissues. There are two types Okay. of No, that's it only. So we have seen सिर्फ क्या क्या हमने कौन से types of stress देखे? Hypo, then hyper, then you and distress. ये हम 4 टाइप के हमने स्ट्रेस देखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको थोड़े से और अलग एग्जांपल डाल के ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में हम इसको और एनहांस करेंगे, ठीक है। चलो देन एवरीवन, बाय, टेक केयर, मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।